ऐसे मीटिंग्स करने से physically. So there are apps being developed, personal The Boki Pravas special recognition. Man vehicles for होलिस्टिक टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा So hi friends, Digital transactions so there's in a India in the last extraordinary 3 years. program going on We've got called 700 Pravas 3.0. internet It is users. all We've got about 50 million bringing in internet lot of transactors. upgradation almost doubled in in the last transport 2 years, and industry. this is also It's a showing in passenger the transport show. and the search So patterns on our platform. based on this, We see let us try far to see more what are the interest developments coming going on, from what are the tier big two, tier three people related to this not only industry of in terms of transport transactions, but also in in association terms with the of passengers searches, transport which clearly shows are that trying to do and people trying to bring are- up. So let's try to enjoy the show. always traveling, but Thank I you. think the whole कैसा बनता एक गाड़ी में कितने लोग शहर में आते हैं, वो लोग कितना पैसा खर्च करते, उसके ऊपर राज्य को कितना। ऐसे मीटिंग्स करने से आपका भी बहुत फायदा होता है। नॉर्मली आज के समाज में इंडिया में कोई अपना घर पे बैठ के आवाज दिए तो कोई सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं रहता। हुआ है आज तक 5.5 लाख करोड़ रुपए, 5.5 लाख करोड़ रुपए, और वो मेट्रो तकरीबन 35 लाख लोग कैरी करती है, जबकि बस जो है वो दिल्ली की बस तकरीबन आज भी 60 लाख लोग रोज कैरी करती है, और उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि 10-15 हजार करोड़ भी डालेंगे तो सबकी सब बस बदली हो जाएगी। तो जब भी बस पे आता है तभी लोग बोलते हैं कि वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, IRR कितना है वगैरह, बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, लेकिन रोड बनाने के लिए उतने कैलकुलेशन नहीं होते, और एयरपोर्ट को 30 साल के हिसाब से देखा जाता है, जबकि बस स्टेशन को 5 साल 10 साल में रिटर्न आने की सोचता है। तो सर ये थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो थोड़ा दूर होने की आवश्यकता है। आपके पास नॉर्मली सिंस यू आर फाइनेंस मिनिस्टर, आपके पास ट्रांसपोर्ट कमिश्नर या वहां के लोग आते रहेंगे जो बोलते रहेंगे पर बस इतना टैक्स बढ़ाएंगे तो इतना रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता आपके पास आके आपको बोलता रहेगा कि टूरिस्ट इतने आएंगे तो इतना रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। अगर आप होलिस्टिक टैक्स कलेक्शन देखेंगे तो जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, जितने ज्यादा has mentored over 1,000 startups. Please put your hands together for this. Incubated over 190 companies, including startups in EV segment and unmanned vehicles for. The Boki Pravas Special Recognition Award, the Chairman and Managing Director of VRL Group and Advisory Board Member of Boki, the first generation entrepreneur with tremendous vision and perseverance. In 1976, he set his footprint in the transport business with a single truck. VRL Group today has the largest fleet of commercial vehicles in India in private sector with over 4,800 vehicles. Boki is honored to felicitate him today and wish him many more successes in his incredible journey. Ladies and gentlemen, on behalf of the entire fraternity. So here there is a fabulous program going on, that is Pravas 3.0. And you know what? It has been organized by Boki, Bus and Car Operator Corporation of India. And that's such a great and prestigious organization. Chairman sir, जगदेव सिंह खालसा सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर। बोके के बारे में और आपके कार्यक्रम के बारे में लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या बोलना है बोलिए सर, बोकी जो है उसका जो मिशन है वो है टुवर्ड्स सेफ, smart, sustainable passenger mobility, and we have started marching towards it. We have been doing a lot towards this. Unfortunately, for the past 2 years, जो कोविड आया उसकी वजह से हमारा बड़ा भारी सेटबैक रहा इस ट्रिप को। डिस्पाइट दैट, बोकी हैज हेल्प देयर मेंबर्स बाय वेरियस स्टेप्स टेकन अप। नाउ व्हाट आई फील इज कि वी हैव बीन डूइंग फॉर safe, smart, sustainable passenger mobility, all right. But what I now aim is, today the rate of accident and the fatalities on the road has reached alarming situation. Alarming, okay. Alarming situation. And
the amount of rupees invested on cancer cure is much more than what they are investing on road I'll conditions. now request. And the fatalities in road accidents are much more than what the cancers are. Oh my God. So my aim is to work towards reduce road accidents Very and good. make India accident-free country. accident-free country. This is what I feel that in the future India should be an accident-free country. This is what we are The topic aiming is at. very, very important And with the this time. The future of public transport. Pravas, insights by more than sector 4,000 leaders. delegates are here. The leadership The strong will show the way delegates how- what should will the future be of doing public a transport. lot, I will now contributing a request lot the towards Pastor this. to take us through सर the- आप when you were in the beginning of the industry, वो पहले के दिनों में आई मीन जैसे पिछलों के दिनों में और आजकल के दिनों में और कल आने वाले दिनों में आप क्या चैलेंज है, मेजर चैलेंज आप देखना चाह रहे हैं ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में और इसको कैसे ओवरकम करना चाहते हैं? पहले के दिनों में और आज के दिनों में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। द मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है पहले से आज के दिन में। टेक्नोलॉजीज़ बहुत आ गई हैं, टेक्नोलॉजीज़ बहुत बढ़ गई हैं, नई नई व्हीकल आ गए हैं और नई नई टेक्नोलॉजी से लैस आ गए हैं। जो पहले जिस तरह से रेड बस वगैरह नहीं हुआ करती, एग्रीगेटर नए आ गए हैं, हमारी बुकिंग का सिस्टम बदल गया है, रोड कंडीशन भी पहले से बेटर होने लगी है। हालांकि जितनी हम चाहते हैं वैसी नहीं हुई। अभी जो हमें प्रॉब्लम है और जो आने वाले कल में हम उम्मीद करते हैं वो ये है कि जो पेडेस्ट्रियन के लिए जगह होना चाहिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को करना चाहिए, वो सड़कों के साथ पैदल चलने वालों के लिए भी कोई व्यवस्था करें, साइकिलिस्ट के लिए व्यवस्था करें, स्लो स्पीड मूविंग व्हीकल्स के लिए अलग से व्यवस्था हो, ताकि रोड ऑफ एक्सीडेंट किसी तरह कम हो सके यहाँ पर। और आने वाले कल के अंदर जो नई नई टेक्नोलॉजी से लेस नई नई व्हीकल्स आ रही हैं, वॉल्वो आ रही हैं, स्लीपर कोच आ रही हैं, आयशर आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं, तो उन सब से सिनेरियो बहुत बदल जाएगा और हमें उस सब के लिए तैयार होना पड़ेगा। आज से हम उसके लिए तैयारी करेंगे, तब हम आने वाले कल को सुंदर और स्वच्छ बना पाएंगे। तो इतना बढ़िया टिप्स दिए हैं सर जगदेव सिंह खालसा सर, जो प्रेस्टिजियस बॉकी के हैं चेयरमैन सर है। सर वो क्या बोले थे सर वो स्लोगन? प्राउड टू बी ए ट्रांसपोर्टर। वाओ, फिर से वंस अगेन प्राउड टू बी ए ट्रांसपोर्टर टू ऑल द पीपल अराउंड इंडिया। So it's a ट्रांसपोर्टर from the chairman sir of Boki. Thanks a lot sir. Namaskar sir. Namaskar. The 3.0 is going on, and you know what? The president of Boki, the bus and car operators of India, Corporation of India, President Mr. Prasanna sir is here. He has come all the way from Pune to make this event a successful event. You know why? To make all the transporters of India a better future. Let us ask Mr. Prasanna sir. Hi sir, and it's given me a great pleasure to see such a great event going on, and you being the instrumental person for all these things. Prasanna sir, आप बोलिए लोगों को देश में और जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है उन लोगों का चैलेंजेस क्या है और आप चैलेंजेस को मेन चैलेंज क्या हो सकते हैं और उसको सक्सेसफुली ओवरकम करने के लिए आप लोग बॉके में इधर क्या करने वाले हैं ये 2 दिन में? ट्रांसपोर्टर के सामने तो बहुत सारे चैलेंजेस है। हाँ सर। सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमको जो परमिट की या लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है। दूसरा प्रॉब्लम है टैक्सेशन अलग अलग है। लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि हर स्टेट के लॉ अलग अलग है और सेंट्रल का रूल और स्टेट का रूल दोनों फॉलो करना पड़ता है। ओके। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए रोड के सिवा कुछ नहीं है। बस स्टेशंस नहीं है, बस स्टैंड्स नहीं है, रास्ते से निकलना पड़ता है। ओके। तो रास्ते पे हैरेसमेंट होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो तकलीफ होती है बॉर्डर पे। तो ये तकलीफ सालों साल चलते आ रही है और ये कम करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम सब लोग इकट्ठा आएंगे, हर एक स्टेट वाला आदमी उसके प्रॉब्लम बोलेगा, दूसरे स्टेट वाले से सुनेगा उनके यहाँ अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ की वजह से हम ये प्रॉब्लम सरकार तक पहुँचाएंगे कि भाई ये स्टेट में ये अच्छी चीज़ें हैं, आप ले लो। ये चीज़ में ये बदलाव लाने की आवश्यकता है, ये ले लो। तो ये सब हम कर सकते हैं। सो देखिए ना, जो लोग अभी बोल रहे हैं भाई हम लोग ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अगले जनरेशन न्यू जनरेशन वाला आने के लिए एक बार 2 बार सोच रहे हैं, लेकिन दे वांट टू मेक इट ए मोर प्रेस्टिजियस थिंग बाय सर्टेन करेक्टिंग सर्टेन माइनर इश्यूज। सर और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, आपने पोस्ट कोविड तो बहुत सारे इश्यूज को संभाला है, देखा है। जो पोस्ट कोविड में भी आई केम टू नो दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज वर्कड फॉर माइग्रेंट वर्कर्स।
सर पोस्ट कोविड में तो ये व्हीकल है सर, व्हाट अबाउट द इकोनॉमिकल फैक्टर दैट इज गोइंग टू चेंज? अभी कोविड की वजह से हमारे बहुत सारे ऑपरेटर तकलीफ में आए हैं। 2-2 साल, 1-1 साल जब तक गाड़ी बंद पड़ती है तभी वो उसको रास्ते पे लाने के लिए वापस पैसे लगाने पड़ते हैं। टायर खराब होते हैं, वायरिंग खराब होती है, कुशन खराब होती है, तो वो लाने के लिए पैसा नहीं लोगों के पास। दूसरा, कई बैंकों की तकलीफ हुई है, बैंकों ने गाड़ियाँ जब्त कर ली है, तो उसकी वजह से कोई ऑपरेटर का बहुत तकलीफ है। तो ये सब के लिए हम गवर्नमेंट के साथ फाइट कर रहे हैं, आरबीआई के साथ भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि इनको रिलीफ दे दो। वो कोई ऐसे चोर नहीं है लोग, उनको रिलीफ चाहिए, उनको मोहलत दे दो ज़्यादा पैसा देने के लिए। अभी नहीं दे सकते, 3 साल में देंगे, लेकिन वो देंगे आपको ज़रूर, क्योंकि हम किसी का पैसा डुबाना नहीं चाहते। लेकिन वो अभी तक तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो उसके कोशिश में लगे हैं। गडकरी साहब के पीछे कुछ लॉ चेंजेस करने में लगे हैं। गडकरी साहब ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा परमिट दिया अभी, कि जिसमें एक टैक्स भरेंगे तो आप देश भर में कहीं पर भी जा सकते हो। जो पहले हर एक स्टेट का टैक्स अलग अलग भरना पड़ता था। 1 साल के लिए या जिंदगी के लिए? 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। लेकिन पहले हर एक स्टेट का टैक्स अलग अलग से भरना पड़ता था, तो वो बहुत होता था टैक्सेस। अभी ये 3 लाख भरेंगे तो देश भर में आप कहीं पर भी जा सकते हो। तो ये सुविधा उन्होंने दी है, तो उसका हमें बहुत फायदा होगा। इसके लिए हम 10 साल लड़े तभी अभी जाके ये मिला है। सो पक्का सच्चे दिल से ये लोग कर रहे हैं, इतना बड़े लार्ज स्केल में कर रहे हैं। सो एक वन लास्ट क्वेश्चन सर, जो आने वाले पीढ़ी लोगों को, यंग जनरेशन वालों को, जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या वैल्यूबल टिप देना चाहते हैं? सबसे क्या है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। एनवायरनमेंट के वजह से गाड़ियां बदल रही है, डीजल से इलेक्ट्रिक हो रही है। एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारी जगह गाड़ियां जा नहीं सकती। लोगों की अपेक्षाएं बदली हो चुकी है, बिजनेस के मॉडल बदली हो चुके हैं। पहले कैसे थे, हम ऑलराउंडर थे, किशोर कुमार के जैसे, हम ही डायरेक्ट करेंगे, हम ही एक्ट करेंगे, हम ही गाएंगे, सब हम करेंगे। अभी आइडिया लेके आने वाला आदमी कोई और है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई आदमी और है, और पैसा देने वाला कोई आदमी और है। तो पैसा लगाने वाला आदमी बिजनेस करता नहीं, बिजनेस करने वाला दूसरे से आइडिया लेता है, वो बिजनेस करता है। तो ये अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज़ें टेक्नोलॉजी की वजह से बदली हो रही है। तो नए जनरेशन को हमारा टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना पड़ेगा। दुनिया कौन सी दिशा में जा रही है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस कैसी बदली हो रही है, उसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम इसमें टिक पाएंगे। What a great point to all the people out over there looking out to make their profession in transport industry. The BOCECA president, Mr. Prasanna sir, is saying, you have to combine all the factors, whether it is an idea, giving personality, or the financing person, or you working in the business. इन सब को मिला के, all with one factor, don't forget, upgrading yourself with the technology. So इन सब को मिलावट करके एंड खुद के अंदर अपने आप के अंदर एक उत्साह और खुद के परिवर्तन लेके आए तो ये you will be able to change to the adapting situations. You will be able to adapt to the changing conditions. That is the concept Prasanna is saying as the president of BOCE. So take this as the golden words. Go ahead, be a proud ट्रांसपोर्टर, प्राउड टू बी अ ट्रांसपोर्टर। That is the caption, that is the voice they are raising, that's the slogan they are raising. गर्व से कहो हम ट्रांसपोर्टर है। गर्व से कहो हम ट्रांसपोर्टर है। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर।